Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel UGC Net Concepts. Friends, I hope you all are good. फ्रेंड्स, लास्ट जो हमने लेक्चर जो हमारा जो कंप्लीट हुआ था, जो लेक्चर नंबर 1 रिगार्डिंग प्लेटो, हम प्लेटो पढ़ रहे थे। जो प्लेटो he gives three forms and he gives the theory of forms, because Plato believes that the things which are visible are not perfect. They are imperfect copies of the knowledge. They are imperfect copies of the things which are not visible. Friends, regarding this, he believed that things we see we in the nature, they are not real. They are based on opinion. They are not based on the knowledge. Regarding this, one important thinker of the Western, Rousseau, he called the Republic as the finest treaty on the education system. Socrates believed the best form of government is aristocracy. Aristocracy means it is the government presided by the some people or particular strata, and the people who understand the forms, and the particular strata or particular group is the group of those who are who have knowledge, and the knowledge is only achieved by the philosopher. Social system of the ideal state will in such a way that abolish their mind for any gain or glory. He said the system will be designed in such a way that the king will not have any type of property and type of gain and type of benefits and the glory. He gave the concept of communism of wives and property. It is very important concept for the exam point of view. Communism of wives and communism of wives and property. It means there will be no family and no property. Children will have common parents and state will organize the mating season. State is responsible for the birth of king. He designed in a society where best male and the best female are chosen and they are allowed to mate, and a season which environment is provided by the society. So the baby who will take birth is he will not know who is his mother, who is his father, and he doesn't belong to any community, he doesn't belong to any society, and that baby will be provided education by the community or the society as per the level of as per on depend of the time. There is one important philosopher of the Western, that is Karl Popper. He called Plato the enemy of society. Friends, this quotation is asked many times in the exam. Who called the Plato the enemy of open society? Enemy of open society, it means that Plato didn't believe that the people who are living in our society are good, or they can control the government, they can be made king, they can be made philosopher, they can acquire knowledge. No, friend. Plato believed that knowledge is some particular type of people have rights to gain knowledge. All are not allowed to gain knowledge. He believed that only philosophers have right to get knowledge, and those who are right to get knowledge, they are only made king. No other people are allowed to made king. So he believe in totalitarian state. Totalitarian state का मतलब फ्रेंड होता है कंट्रोल, और बाय द सेंट्रली कंट्रोल होता है एक एरिस्टोक्रेटिक लीडर, एंड एरिस्टोक्रेटिक लीडर का मतलब होता है कि
आप पर्टिकुलर स्टेटा के लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ नॉलेजफुल लोग होते हैं, वही लोग इसको कंट्रोल करेंगे टोटलिटेरियन स्टेट को। एज पर प्लेटो ओनली फिलोसफर आर द लीडर। सोसाइटी को कौन बताएगा कि है ना ये पढ़े लिखे लोग ही समझदार होते हैं? तो उसने लोगों को ये बताने के लिए कि पढ़े लिखे लोग ही समझदार होते हैं, तो प्लेटो यूज़ करता है कंसेप्ट को, मिथ, एक बहम लगाता है टू कंट्रोल द पब्लिक करने के लिए। दो कंसेप्ट होते हैं, नोबल लाई एंड मिथ ऑफ मैटर। वो एक पर्टिकुलर लोगों से एक झूठ बुलवाता है। वो कहता है कि लोगों की भगवान ने है ना लोगों को इस हिसाब से बनाया है, वो मेटल्स के हिसाब से बनाया है, मिथ ऑफ मेटल, दैट गॉड हैव मेड मैन ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज एंड ईच शुड नो हिज प्लेस एंड डोंट क्वेश्चन इट। उसने बताया कि जो हायर क्लास के लोग होते हैं उनको भगवान ने गोल्ड से बनाया है, बीच वाले ऑक्सिलरी क्लास के लोग होते हैं उनको सिल्वर से बनाया है, एंड प्रोड्यूसर क्लास के लोगों को भगवान ने ब्रॉन्ज से बनाया है। एंड भगवान ने बताया है कि नो वन क्वेश्चन टू ईच अदर, कि भाई आई एम मेड फ्रॉम गोल्ड, भाई यू मेड फ्रॉम सिल्वर, यू मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज, एंड पीपल विल नॉट क्वेश्चन इट। टू कंट्रोल द सोसाइटी ही गिव द कंसेप्ट ऑफ नोबल लाई और myth of metal. Friends, it is a very important concept for the exam point of view, whether it is descriptive type question or MCQ type question. You will find one statement and मतलब आप डिस्क्रिप्टिव में भी इसको लिख सकते हो, MCQ में भी इसका मतलब आ सकता है क्वेश्चन। Friends, it was his important book, The Republic. That was the whole dialogue of the Socrates and sophists, especially Thrasymachus. His next book was The Statesman. It is a dialogue trilogy. ये बुक भी डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है, द रिपब्लिक भी डायलॉग फॉर्म में लिखी गई थी। ये ट्रायोलॉजी है, उसमें वो दो लोगों द्वारा लिखी गई, दो लोगों की इसमें बातें होती हैं, सोक्रेटिस की एंड सोफिस्ट लोगों की। इसमें ट्रायोलॉजी है, इसमें 3 लोग हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो 3 इम्पोर्टेंट हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट में आता है थेटिस एंड सोफिस्ट एंड द स्टेटमैन। स्टेटमैन में क्या होता है कि मेन रोल जो है वो दिया गया है एलियाटिक विजिटर। ये करेक्टर है एलियाटिक विजिटर, एक नेम है ये कोई एक पर्सन है, उसको इसमें मेन रोल दिया गया है। फ्रेंड्स, द स्टेटमैन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, let you know, I will cover the whole important question that can be asked in exam from the point of view of from Statman book. The Republic is very important, Statman is not much important, and the laws is also not much important for the exam. You only read this, who was the main role in Republic में main role कौन था? Please tell me in the comment section कि Republic में main role किसको दिया गया था, and Statman में main role दिया गया है Asiatic visitor को। What was the need to write this book, and what this book explain? The book explain the art of political leadership. हमने इस रिपब्लिक में स्टेट बनाया था कि स्टेट कैसा होना चाहिए, एक आइडियल स्टेट होना चाहिए, जिसको है ना प्लेटो ने काली पुलिस बोला था, कि जिस भी स्टेट के अंदर उसका रीजन, जिस भी स्टेट के अंदर उसका जो तीनों क्लासेस होती हैं, मतलब एक्जुलरी क्लासेस होती है और प्रोड्यूसर क्लासेस होती है, ये क्लासेस एक प्रॉपर अपने हिसाब से काम करेंगी तो वो एक आइडियल स्टेट होगा। इस टाइप में एक लीडर भी चाहिए। एक लीडर, कौन आइडियल लीडर होगा? तो इसके हिसाब से उसने एक पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए द स्टेटमैन लिखा। स्टेटमैन का मतलब ही वही होता है। ही फाउंड इन आइडियल स्टेटमैन बट ही इज़ नॉट आइडियली फॉर्म। वो एक ट्राई करता है एक आइडियल लीडर बन जाए, उसके ऊपर कोई आइडियल लीडर मिलता नहीं है, लेकिन सेकंड बेस्ट फॉर्म गवर्नमेंट वो बनाता है जो कि कंट्रोल होगी लॉ के द्वारा। फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो लॉ के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट बुक इज रिटन बाय हिम वाज द लॉज। योर थर्ड बुक प्लेटो लॉन्गेस्ट वर्क, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लॉन्गेस्ट वर्क है। इट इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट लॉन्गेस्ट। फ्रेंड्स, try to make it differentiate, that is the law was the longest book comprising of 12 books. इसमें 12 किताबें थी फ्रेंड्स। मेन रोल
इसमें दिया गया एथेनियन स्ट्रेंजर. If you can recall that the main role was given in Republic was the Socrates, and the स्टेटमेंट्स में इसको एलियाटिक विजिटर को दिया गया था, एंड मेन रोल यहाँ पे दिया गया एथेनियन स्ट्रेंजर. फ्रेंड्स दीज 3 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन. यहाँ प्लेटो इसको क्या समझाता है कि आइडियल सिटी क्या होती है. यहाँ पे आपने पहले में आइडियल स्टेट को देखा, सेकंड बुक में आपने एक पॉलिटिकल लीडरशिप को देखी कि लीडर क्या, एंड थर्ड में एक आइडियल सिटी क्या होती है. सेकंड बेस्ट सिटी बनाता है, वो आइडियल सिटी ढूंढता है, यहाँ पर भी उसको आइडियल सिटी मिलती नहीं है, तो एक सेकंड बेस्ट सिटी बनाता है जिसका नाम उसको मैग्नीसिया दिया था. मैग्नीसिया का जो होगा वो गवर्न बाय द लॉज, जो कानून के हिसाब से चलेगी, एंड जो उसको जो कानून को चलाएगा उसको बोलते हैं नोक्टरल काउंसिल. एक काउंसिल बनाई जाएगी, वो इसको चलाएगी, उस जो बेस्ट सिटी बनेगी उस सिटी को ये काउंसिल चलाएगी. इस काउंसिल का नाम है ये, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल बी ए मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का होगा इस सिटी के अंदर, कम्बिनेशन ऑफ मोनार्की एंड द डेमोक्रेसी. इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर टाइप of a constitution that is provided in this ideal city or second best city Magnesia. Friends, question can be asked from it. What type of the constitution was provided by the Plato in his second best city Magnesia? Friends, it is a combination of a monarchy plus democracy. Some important words as per the exam point of view. एलेंकोस. एलेंकोस क्या होता है फ्रेंड्स? जब सोक्रेटिस वो कुछ लिखता नहीं था, हमेशा ही गिव नॉलेज टू हिज डिसाइबल्स व्हेन ही वाज वॉकिंग, ही वाज डूइंग वर्क. कभी उसने बैठे कभी किसी को समझाया नहीं कि क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या सही है, क्या गलत है. वो चलता रहता था, काम करता था, और अपने डिसाइबल्स थे उनको बता दिया उसने, कभी कि डिस्कस कर लिया, उनको बता दिया कि डायलेक्टिक फॉर्म में होता है, किसी ने क्वेश्चन पूछा उसने आंसर कर दिया. इस टाइप में वो नॉलेज प्रोवाइड करता था. कभी उसने कोई बुक नहीं लिखी, कभी उसने किसी को कोई भाषण नहीं दिया इस टाइप का. तो उन जो बातें होती थी ना, जो डायलेक्टिक फॉर्म में जो डिस्कशन होते थे, इनको एलेंकोस बोला जाता है. फ्रेंड्स, यू विल फाइंड द होल स्टेटमेंट फ्रॉम दिस हियर टू हियर, एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट दीज आर कॉल्ड. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से गैडफ्लाई. गैडफ्लाई क्या होता है? जो कॉन्सेप्ट जो उनके स्टूडेंट्स के सोक्रेटिस के स्टूडेंट के होते थे उनको जो क्लियर करता था उस टाइम में, जो क्वेश्चन एंड आंसर होते थे ना, उनको गैडफ्लाई बोलते थे. मतलब जो गैडफ्लाई होते थे ना, उनको जो क्लियर करता था वो एलेंकस होते थे. फ्रेंड्स, दिस इज फॉर टुडे, एंड नाउ वी कंप्लीट आवर प्लेटो. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर Aristotle. That's again important thinker, and you all know that Aristotle was the student of Plato. Thank you. If you feel that it is quality content, and if you can reward my hard work, please share it, like it, and subscribe it. Thank you, students. Have a good day.